अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू आज राज्यसभा में वो एक बार फिर से बिल को रखेंगे। ये बताऊं कि राज्यसभा में इस वक्त हंगामा चल रहा है और राज्यसभा में हंगामा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो अनुराग ठाकुर ने बयान दिया उसे लेकर चल रहा है। वो जरा अगर सुनवा भी सकते हैं तो सुनवा दें, क्योंकि इस वक्त राज्यसभा में एक हंगामा चल रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए गए ये भी बात कही गई। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए हम दिखा सके, क्योंकि वहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है, जरा देखते हैं। The other house, with respect to very senior people, Khadgeji is one of the very senior most people. I don't want to say what has been said with respect to other very senior people holding constitutional positions, including the Prime Minister. I would therefore urge everyone, whether one is Prime Minister, Leader of the House, Leader of the Opposition, for me, every member has a precious reputation to preserve. And therefore, anything which has been expunged should never get traction. And I had therefore indicated and assigned a task to Parliamentary Committee of Ethics headed by Ghanshyam Tiwari ji to exactly find a way out, because we expect a member who may emotively be carried on account of being a new member or otherwise, and if he apologizes in the House, it only improves image of the member concerned. But it is very difficult to control media traction. And I am sure Ghanshyam Tiwari ji, very experienced member, heading the Ethics Committee, I have given him this task to find out a mechanism, and for that, honorable members need to be counseled. Political parties must have their workshops. They must educate their members. And let me tell you, sir, let the honorable... One second. No. Again, you are doing something which I'm... No. Honorable members, no, nothing. Listen to him. No. Listen to him. No, whom? The House wants to listen to the minister. Who, why? Because he got up and he was offering an explanation. No. Minister was reacting only to order in the House. No, sir. Sir, I'm sorry. Let us listen to him, sir. Jairam, let us listen to him. Don't create disorder. Even when Khadgeji was in the first instance speaking, you got unnecessarily. Let me tell you, I have said on a number of occasions, if Khadgeji rises, he doesn't need any crutches to make a point. His rising is sufficient as leader of the House and others. But I'm making one prayer. As chairman of the House, my suffering is no less on the premises of this parliament and in social media by responsible people. I don't want to say anything more. All I say is, let us counsel our members, be large-hearted, generate a good ecosystem, and let the Ethics Committee be extremely proactive. Ghanshyamji, and we expect you, because honorable members, I had said... आपकी आज्ञा का पालन शुरू कर दिया है साहब. I'll tell you, honorable members, S.B. Chauhan... Sir, defamatory remarks against the LOP. Let's not go round and round. This pretty not... Not diverted to issue. Yes. One second. One second. Nothing is going on record. Nothing going. I appeal to very senior members. No, please. I appeal to senior members that S.B. Chauhan, जो कि इस पूरे मामले में सांसदों से अपील भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी बताऊं कि राज्यसभा में आज वक्त संशोधन बिल चर्चा के लिए आएगा। इसको लेकर विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, सांसद दिनेश शर्मा और संजय जायसवाल ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। समझता हूँ कि ये एक अभूतपूर्व है और इसे जो वंचित वर्ग का मुस्लिम है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा है या वो तलाकशुदा हैं, उनके उद्धार के लिए होगा। अगर आप अभी देखो तो वक्फ की कुल संपत्ति रेलवे और रक्षा के बाद है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी 153 करोड़, और इसके बाद
जब जो सुधार के उसका सदुपयोग हुआ एक्ट के बाद, तो आमदनी प्रस्तावित कितनी है? 12,000 करोड़। क्या बनेगा? विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपक्रम बनेगा, स्कूल बनेंगे, मदरसे भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृत्य जो धर्म से संबंधित, समाज सुधार से संबंधित होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार वाला है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। ये उन इमरान मसूद साहब के लिए, ओवैसी साहब के लिए, हबीबुल्ला साहब के लिए, जिन ने वक्फ की संपत्ति पकड़ के रखी हुई है, जिन्होंने अब लॉन्ग टर्म लीज लिया हुआ है, उन सबों के लिए ज़रूर काला दिन है। बेचारों की दुकानदारी भी बंद होने जा रही है, और जो संपत्तियां उन्होंने कैप्चर करके रखी हैं, उसके बारे में जनता को भी पता चल जाएगा कि किस नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किस सदस्य ने कितनी जमीन वक्फ बोर्ड की लॉन्ग टर्म लीज के नाम पे हड़प के रखा। तो बड़ी खबर भी आपको बताऊं कि मुंबई से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रही हूं। वक्फ संशोधन बिल कैसे लोकसभा में कल पास हुआ है और उसके बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा दोपहर 1 बजे से होनी है। मुंबई में जश्न मनाया जा रहा है, सुनिए। संघर्ष करो मोदी जी की शान में, सर मिठाई लेके आओ। अरे मोदी जी की शान में, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप संघर्ष करो, मोदी जी आप संघर्ष करो, मिठाई लेके आओ। मोदी जी की शान में, सर मिठाई लेके आओ। अरे मोदी जी की शान में, मोदी जी की शान में, मोदी जी आप आगे बढ़ो। देखिए, ये मुंबई से तस्वीरें आ रही हैं और प्रीति जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कपिल प्रोफेसर कुमार हमारे साथ हैं। प्रीति जी, ये एक मैंने तो बहस में देखा है, डिबेट्स में देखा है कि जो लोग समर्थन में आते हैं उन्हें बहुत क्विकली लेबल कर दिया जाता है, और वो लेबल जो है ऐसा लगता है कि जो समर्थन में है वो गलत ही बोल रहा होगा। अब ये जो लोग उतर आए हैं सड़क पर, जो समर्थन कर रहे हैं, या फिर जो आवाजें खुलकर, खासकर मुसलमान पक्ष में जो आवाजें समर्थन करती हैं, वो क्या हित नहीं देख रही हैं मुसलमानों? सुचरिता जी, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो तस्वीरें आपके न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि वो हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान जिनका हक वक्फ बोर्ड के अंडर में, वक्फ बोर्ड के नाम पे जिनका हक मारा गया। सबसे बड़ी बात कि वक्फ मतलब चैरिटी, जब आप अल्लाह के नाम पे चैरिटी देते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए आप संपत्ति देते हैं, तो जो करोड़ों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास आज हैं, सोच लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस ने 194 या 193 कंट्रीज को रिकॉग्निशन दे रखी है, मान्यता प्राप्त कंट्रीज हैं, 190 भी पकड़ लेते हैं। 50 कंट्री के पास जितनी संपत्ति होगी उतनी वक्फ बोर्ड के पास अकेले भारत में संपत्ति है।